Hello everyone. As we are done with the chapter 1, that is nutrition in plants, now we will start with the second chapter, that is nutrition in animals. So basically, after plants, the major living organism on this planet is animals. And animals, how they get food, how the food will break down, how we get energy, the whole process will be discussed up in this chapter. So basically, first I want to tell the topics that we are going to cover today. That are basically first that is introduction, then we will discuss about the word food, then we will discuss the sources and importance of food, why the food is important for us, and the term digestion as well as about the alimentary canal. So first we discuss about the introduction. As you can see in this picture, there are many different kind of animals present. And basically we know that animals get their food either from plants by depending directly on them or indirectly. So on that basis, the animals are divided into three categories. The first one is your herbivores, and the second one is your carnivores, and third one is your omnivores. These three terms are you are very well aware of them. Herbivores basically those on which the animals are dependent only on plants. Carnivores basically are those which are dependent on other animals for their food, and omnivores basically are those which get food from both plant as well as animal. So we find out that only the plant is the major source of the food. Now you can see there are different organisms here and they will have different eating habits. Like goat and rabbit, they feed on grass, so they are kind of herbivores. Shark and tiger, they get their nutrition by feeding on other animals, so they are a kind of carnivores. Next, what does the word food means? So basically, food is the nutritious substance in which the nutrients are present that is required by plants, animals and human beings for their survival and growth. ह्यूमन बॉडी की सर्वाइवल और ग्रोथ सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फूड. एज यू कैन सी different kind of food items are there, in which we have mentioned about the carbohydrate rich food also, and some different states have different kind of food. So basically food is the basic important need of a living organism. The food that we eat contains carbohydrates. हम जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. द कार्बोहाइड्रेट दैट वी आर ईटिंग इन फूड इज़ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. वो होता है कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही डिफ़िकल्ट, दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली, जिसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. यूटिलाइज़ का मतलब क्या है? यूज़. So firstly it has to be broken down into simpler ones. So your complex substance gets converted into simpler substances. And this conversion or the breakdown of this complex substance into simpler substance is known as digestion. The whole process of conversion of the complex carbohydrate into simple carbohydrate is known as digestion. The sources of food, basically all animals like human beings also, because human beings are a kind of animal, they cannot produce their own food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They are dependent on plants. किस पे डिपेंड करते हैं? बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज मेजर सोर्स हमारा क्या है? ओनली द प्लांट्स. और प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. नाउ द क्वेश्चन कम्स अप, व्हाई देयर इज नीड ऑफ फूड? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड? सो फर्स्ट थिंग, इट सेटिस्फाइज द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इज़ लाइक, जैसे आपने गर्म प्लेट पे हाथ टच किया तो आप उसको पकड़ के नहीं रखते हो, आप अपना हाथ वापस हटा लेते हो. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. तो सिमिलरली हमें फूड की ज़रूरत कब होती है? जब हम हंग्री होते हैं, यानी कि भूखे होते हैं. तो उस रिफ्लेक्स एक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? फूड की. जो फूड है हमारा, दैट कैन बी फैटी फूड और नॉर्मल फूड, इट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू एडिपोज टिश्यू.
जो कि एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें जाके डिपॉजिट हो जाता है और हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब जब हमारे पास फूड ना हो खाने के लिए। जैसे हमने कभी फास्ट रखा, सो इन दैट केस हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी बिकॉज हमने फूड नहीं खाया है। सो ऑन दैट डे द फूड विच इज़ डिपॉजिटेड इन द एडिपोज टिश्यू विल प्रोवाइड अस एनर्जी. The main function of food is to provide energy and it warmth the body by regulating the temperature. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करके रखता है, नॉर्मल रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, वार्म करके रखता है. एंड ईट व्हेन वी आर ईटिंग हेल्दी द बॉडी विल बी बैलेंस्ड and we have to perform some exercises also. We should never ever only eat food. We should always perform some exercises. It makes our body fit and fine. So basically now we will discuss about digestion. When the word digestion comes, हमने already discuss कर लिया, ये एक process है जिसके अंदर हमारा जो complex food है वो किसके अंदर convert हो जाता है, simpler substances के अंदर. आपने जो खाना खाया, एक बाइट ली, तो वो बाइट एज इट इज़ आपकी बॉडी में, स्टमक में नहीं चली जाती है, वो पूरी ब्रेक होकर के जाती है. अब वो ब्रेक होती है तो ब्रेक होने पे हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है. खाना हमने कहाँ से लिया, थ्रू आवर माउथ, मुंह से लिया है. और डाइजेशन का हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये दो मोड से होता है. फिज़िकल मोड भी होता है इसके अंदर और केमिकल मोड भी होता है. फ़िज़िकल मोड की बात करें तो बेसिकली फ़िज़िकल मोड हमारा माउथ में ही स्टार्ट होता है बाय द टीथ, हमारे दांतों की हेल्प से. बिकॉज आर टीथ ग्राइंड्स एंड क्रशेस द फूड. ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, उसको बिल्कुल चूरा बना देते हैं. तो फिज़िकल मेथड हमारा कहाँ स्टार्ट हो गया है, माउथ के अंदर ही. एंड टंग ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट बिकॉज फूड यहीं आपके माउथ में नहीं रह जाता है, वो फूड आपके बाकी पार्ट्स के अंदर जाना है, तो टंग हेल्प करती है उस फूड को स्वैलो करने में, निगलने में. एंड द केमिकल प्रोसेस स्टार्ट्स इन योर स्टमक एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन एक प्रोसेस है और जो जो ऑर्गन्स इसके साथ इंक्लूड होंगे प्रोसेस को कराने में, हम उन ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलेंगे. और वो पूरे ऑर्गन जब साथ मिल के काम कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो बेसिकली हम इसी डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ट्यूब होती है, लॉन्गेस्ट ट्यूब, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जा कर के एंड होती है. बेसिकली इसके अंदर हमारे माउथ में जब हम बात करते हैं तो माउथ के अंदर हमारे टीथ के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. सलाइवा इज़ बेसिकली द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर माउथ, जो कि आपके खाने को सूखा नहीं रहने देता, गीला बना के रखता है ताकि वो ईजिली स्वालो किया जा सके. फिर फूड पाइप की हेल्प से, दैट इज़ ईसोफेगस, यहाँ से खाना आपका नीचे जाता है और एंटर कर जाता है स्टमक के अंदर. और स्टमक में एंटर करता है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वापस बाहर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. देन इट गोज़ इन रेक्टम एंड आफ्टर दैट जो भी एक्स्ट्रा फूड है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बाय द ऑर्गन दैट इज़ एनस. सो हमारा जो ये ऊपर का पूरा पार्ट है, दिस इज़ नोन एज बकल कैविटी. उसके बाद हमारी फूड पाइप आती है, फिर खाना हमारे स्टमक में जाता है. देन इट गोज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट गोज़ इन लार्ज इंटेस्टाइन. फिर वहाँ से जिस भी फूड की नीड नहीं है वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम से लास्ट में वो कहाँ निकल जाता है, एनस में निकल जाता है. सो बेसिकली आपने यहाँ देखा कि लिवर भी एक ऑर्गन मेंशन्ड है, एक पेंक्रियाज भी ऑर्गन मेंशन्ड है. इनके फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये अभी आपका सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन था. इसको आप अच्छे से रीड करिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट्स जस्ट द स्टार्टिंग फेज ऑफ डाइजेशन. अभी आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है एंड दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियो. सो गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली. थैंक यू.